Good morning, student. Today we start chapter 3rd, Geography class 12th, Population Composition. When we talk about population composition, it means there are some specific characteristics of population of any place because each person is unique in his or her own way. अर्थात प्रत्येक स्थान पर जनसंख्या की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे आयु, स्त्री पुरुष अनुपात, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यताएं, जीवन प्रत्याशा आदि। इस चैप्टर में हम इनमें से कुछ को समझेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेक्स कंपोजिशन. It means the ratio between the number of women and men in the population. So, how do we calculate it? We find the number of women in a particular area and then the number of men. We will then divide female population with male population and multiply it by 1000. And we get sex composition or sex structure of that particular area. It is an important demographic characteristic of a country. It provides an important information about the status of women in the country. अर्थात लिंग अनुपात से हमें उस क्षेत्र विशेष में वुमेन्स के स्टेटस के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। वे क्षेत्र जहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अधिक होता है, लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के प्रतिकूल होता है। There are some factors which are responsible for unfavorable sex ratio in India. They are low socio-economic status. Second is female foeticide and infanticide. Third is domestic violence against women. Fourth is discrimination between male and female child. And last is social customs. अर्थात भारत में ये सभी फैक्टर्स कमोबेश रूप से हमें प्रत्येक जगह देखने को मिलते हैं, जो कि भारत में प्रतिकूल लिंग अनुपात के लिए उत्तरदायी है। अगर हम सामाजिक आर्थिक रूप से महिलाओं की स्थिति को देखें तो वो कहीं हमें कमतर दिखाई देती हैं। शैक्षिक क्षेत्र में भी महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले कम है। आज भी भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भ्रूण हत्या या जो कन्या शिशु होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। समाज का एक व्यापक वर्ग है जहां पर महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। आज भी कई क्षेत्रों में माता पिता द्वारा पुरुष या फिर जो आपके मेल चाइल्ड होते हैं उनको फीमेल चाइल्ड के मुकाबले ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ये सब वे वजह हैं जो कहीं ना कहीं भारत में जो लिंग अनुपात है उसको प्रभावित करता है। सो वी कैन से दैट sex ratio is unfavorable in those areas where the practice of female foeticide, female infanticide and domestic violence against women are prevalent. In these areas, the socio-economic status of women are also low. अर्थात यह कहा जा सकता है कि अधिकांशतः ये विश्व के वे क्षेत्र हैं जो कि अविकसित है या फिर जहां विकास की गति अत्यधिक कम है। प्रायः इन क्षेत्रों में लिंग अनुपात महिलाओं के प्रतिकूल देखने को मिलता है। यहाँ एक ध्यान देने योग्य तथ्य यह भी है कि अधिक जनसंख्या या अधिक संख्या होने का यह आशय नहीं कि
वहाँ पर महिलाओं का स्टेटस अच्छा होगा या बेटर होगा, क्योंकि कई बार ऐसे अनेक कारण होते हैं जो क्षेत्र विशेष में लिंग अनुपात को प्रभावित करती हैं, जैसे माइग्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर place, etc. So, here we can say some facts related to world population composition. On an average, the world population reflects the sex ratio of 102 males per 100 females. The highest sex ratio in the world has been recorded in Latvia, where there are 85 males per 100 females, and the lowest sex ratio in Qatar, where there are 311 males per 100 females. According to United Nations, the sex ratio is favorable for women in 139 countries and unfavorable to 72 countries of the world. Countries like China, India, Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan have a lower sex ratio, while in some part of Europe, including Russia, it is in favor of women. And the basic reason behind this is better status of women. Now, our second topic is age structure. By the term age structure, we mean how many people belong to which age group, or number of people of different age groups is known as age structure. We can divide it into three groups. Basically, आयु संरचना को हम तीन भागों में बांटते हैं. First is 0 to 14 years. It is also known as dependent population. अर्थात 0 से लेके 14 ईयर्स तक के पॉपुलेशन को हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं. अर्थात यह जनसंख्या का वह भाग है जो कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जनसंख्या के दूसरे भाग या अपने माता पिता पर निर्भर करता है. नेक्स्ट इज 15 to 59 years. This population is known as working population, and the last is 60 and above, and this population is known as dependent as well as aging population. A large size population in the age group of 15 to 59 indicates a large working population, which is beneficial for economic development because they are working, they pay taxes and generate revenue, which play a crucial role in countries' development. Whereas a greater proportion of population above 60 years represents the aging population, which require more expenditure on healthcare facilities, pension, etc. अर्थात किसी देश की आयु संरचना से कई सारे तथ्य सामने आ जाते हैं, जैसे उस क्षेत्र विशेष में जन्म दर और मृत्यु दर कितनी है, लोगों की जीवन प्रत्याशा अधिक है या नहीं, तथा देश के आर्थिक विकास में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शामिल है. So, we can say that age structure is an important indicator of population composition. Now, we move to our next topic, and the topic is age sex pyramid. In simple words, we can say the number of female and male in different age groups is known as
A-sex pyramid. A-sex pyramid have certain characteristic, अर्थात आयु लिंग पिरामिड की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला क्या है? इट शोज द एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, अर्थात ये किसी क्षेत्र विशेष में स्त्री पुरुष अनुपात और अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को पिरामिड के माध्यम से प्रदर्शित करता है। सेकेंड इज द लेफ्ट साइड ऑफ पिरामिड shows the percentage of male, while the right side shows the percentage of female in each age group. Next is, in the vertical axis we represent age, and in the horizontal axis we represent population. We can divide it into three types: expanding population pyramid, constant population pyramid, and declining population pyramid. So first of all we discuss about expanding population pyramid. इस प्रकार का पिरामिड हमें मुख्यतः उन देशों में देखने को मिलता है जो कि क्या है, अविकसित है या विकासशील है। मेनली जो पिरामिड होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, और ट्रायंगुलर शेप में होने की वजह से इसका जो बेस है वो कैसा होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है या चौड़ा होता है, जो कि यह प्रदर्शित करता है कि उस क्षेत्र में जो बर्थ रेट है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। और बर्थ रेट ज़्यादा होने के कारण यंग पॉपुलेशन का परसेंटेज भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। पर जैसे जैसे ये पिरामिड आगे की ओर बढ़ता जाता है ये नैरो होता चला जाता है, सकरा होता चला जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि इन क्षेत्रों में जो जीवन प्रत्याशा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा नहीं है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जनसंख्या में जो कि 60 ईयर्स के अबव तक पहुंच पाते हैं। तो जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड है ये हमें बांग्लादेश, मैक्सिको, नाइजीरिया उन देशों में देखने को मिलेगा जहाँ पर जो आर्थिक विकास है वो अधिक नहीं हुआ है। तो इसके मेन फीचर्स कौन कौन से हो गए? इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ब्रॉड बेस, हाई बर्थ रेट, यंग पॉपुलेशन इज मोर इन दिस टाइप ऑफ ग्रुप, एंड लेस डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में हमें इस तरह का एज सेक्स पिरामिड देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज कांस्टेंट पॉपुलेशन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जनसंख्या में का जो जन्म दर और मृत्यु दर है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी ऊपर से नीचे तक जो पिरामिड है वो हमें एक बेल शेप में दिखाई देता है। यानी पर्टिकुलरली इन क्षेत्रों में हमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों इक्वल दिखाई देते हैं, जो कि ये बताते हैं कि इन क्षेत्रों में जो मनुष्य है उनकी जीवन प्रत्याशा अच्छी है। इस बात से यह भी पता चलता है कि ये मुख्यतः उन क्षेत्रों में दिखाई देंगे जो कि क्या है, डेवलप्ड है ना। तो डेवलप्ड होने की वजह से वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक दिखाई देती है। और इस तरह के पॉपुलेशन पिरामिड का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है ऑस्ट्रेलिया। एंड लास्ट इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इस प्रकार के पॉपुलेशन में हमें नैरो बेस दिखाई देता है, जो कि ये बताता है कि यहाँ पर बर्थ रेट क्या है, जन्म दर क्या है, काफ़ी कम है। साथ ही साथ चूँकि जनसंख्या एक गोलाकार रूप में जा रही है, अर्थात इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि यहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर मृत्यु दर काफ़ी कम है और लोग एक लंबी आयु जीते हैं। जापान इसका एक
अच्छा एग्जाम्पल है। और इसकी जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या है, नैरो बेस्ड है, टेपर्ड टॉप है, लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट है। यहाँ पर आपको जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही काफ़ी कम दिखाई देगा, है ना। ग्रोथ रेट इज नेगेटिव और ज़ीरो। ग्रोथ रेट इज नेगेटिव और ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बर्थ रेट जो है कई बार डेथ रेट उससे ज़्यादा होती है, यानी जन्म लेने वालों की संख्या कम होती है, उसके कंपैरिजन में मृत्यु दर या डेथ रेट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमको इस तरह का नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन भी दिखाई देता है। और ये हमें उन्हीं देशों में दिखाई देगा जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं देशों में अच्छा दिखता है जहाँ जो कि आपके डेवलप्ड कंट्रीज है। और जापान इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और शायद यही वजह है कि वहाँ पर हमें एजिंग पॉपुलेशन देखने को मिलती है, यानी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि 59 ईयर्स के अबव देखने को मिलता है। नाउ our next topic is rural-urban composition. It is mainly based on residence of population. अर्थात जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझने में रूरल अर्बन कंपोजिशन अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन यापन के तरीके, व्यवसाय, सामाजिक परिस्थितियों, जनसंख्या घनत्व तथा विकास के स्तर में हमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। The criteria for differentiating rural and urban population varies from country to country because of different development level of different countries. But in general, rural areas are those where people are engaged in primary activities like agriculture, fishery, forestry, mining, etc. Whereas urban areas are those areas where people are engaged in secondary and tertiary activities. This composition also shows the development status of particular country, क्योंकि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा प्राइमरी एक्टिविटी में जुड़ा होता है वे मुख्यतः अल्पविकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, जबकि जिन देशों में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी सेक्टर से जुड़ा होता है वे डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लिटरेसी अर्थात साक्षरता। वास्तव में साक्षरता दर हमें उस क्षेत्र विशेष की सामाजिक आर्थिक विकास की गति को दर्शाता है जो कि प्रत्यक्ष तौर पर वहाँ के जनसंख्या के जीवन स्तर को प्रभावित करता है। So the proportion of literate population of a country is an important indicator of its socio-economic development as it reveals the standard of living, social status of females, availability of educational facilities and policies of government. In India, literacy rate denotes the percentage of population above 7 years of age who is able to read, write and have the ability to do arithmetic calculations with understanding. If a person do all of this, we call the literate. And the last topic of this chapter is occupational structure. This is another key indicator of working population. जब हम वर्किंग पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः 15 से
59 ईयर्स के एज ग्रुप के लोग आते हैं, जो कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। Here, agriculture, forestry, fishing and mining are classified as primary activity. Manufacturing is classified as secondary. Trade, transport, communication and other services as tertiary, whereas the job related to research, information and technology and developing ideas as quaternary activities. The proportion of working population engaged in these four sectors is a good indicator of the level of economic development of a nation. अर्थात जब हमें इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो हम उस देश की अर्थव्यवस्था को भी आसानी से समझ पाते हैं। अर्थात वह देश विकास की किस श्रेणी में आता है, विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यावसायिक संरचना किसी देश के आर्थिक विकास को इंगित करता है। इसके साथ ही यह चैप्टर समाप्त होता है। आशा है कि इस वीडियो में आपको कई सारे महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।